अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं बेसिकली जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्डिंग जो थी फैक्टर थ्योरम के थ्रू जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो उसका एक क्वेश्चन जो है रैंडमली मैंने उठाया हुआ है. सो दैट इज बेसिकली एक्सरसाइज 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर 14. In the question 14 it is given that we have the polynomial f of a where इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ए. पहले हमने x पढ़ा था, वही है, समझो कि अब इन टर्म्स ऑफ a है. सो f ऑफ a इज बेसिकली a क्यूब माइनस ba स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर a प्लस 4b क्यूब. And question is show that, or we have to prove that a minus 2b is a factor of f of a. बस ये क्वेश्चन है. सेकंड जो उसका पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ b the remainder when f of a is divided by a plus 2. तो जब इस पॉलिनोमियल को a plus 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो है वो इन टर्म्स ऑफ b बताना है. मींस ऑल द थिंग्स विल बी बेसिकली विद द b. इज इट क्लियर? सो पहले फर्स्ट स्टेप जो है, सॉरी फर्स्ट इसका जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि वी हैव टू प्रूव वेदर a minus 2b is a factor of f of a or not. Sorry, f of a. प्रूफ दैट का कहा गया तो ये डेफिनेटली होगा. सो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें a की वैल्यू वेयर a इज इक्वल टू b, जैसे वहां पर x इज इक्वल टू अल्फा था, यहाँ पर समझेंगे ये a इज इक्वल टू 2b इज लाइक अल्फा. सो f ऑफ 2b शुड बी 0. अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो गया कि ये होगा. अगर ये 0 नहीं आया तो फिर हम कहेंगे मगर ये होना चाहिए, क्योंकि उसने खुद कहा है कि वी हैव टू प्रूव दैट. जब प्रूव दैट और शो दैट कहा जाता है तो वो कंफर्म होता है, जैसे आपने उसको वेरीफाई करना होता है कि वो कैसे है. सो लेट मी टू सॉल्व अगेन. एज यू नो दैट जस्ट यू विल पुट x इज इक्वल टू अल्फा टू द गिवन पॉलिनोमियल. सो f ऑफ 2b will be equal to where independent variable is a, means we will put value of a to the basically जिसको हम evaluate the function कहते हैं in other words. So that this will be 2b whole cube minus b of 2b whole square minus 4b square. Value of a is basically 2b plus 4b cube. So overall I just put the values of a is equals to 2b into the given polynomial. So now if you see by then basically basic calculation, 2 power 3 is 8b cube minus this is a 2 square means 4b square, 4b b multiply 4b cube minus again 2 multiplied by 4 is 8, and b square multiplied by b is basically b cube. You know very well how to deal with the basically exponent, plus we have 4b cube. So if you see this 4b cube is negative, this 4b cube is positive, will be cancelled. Similarly this is a 8b cube and this is a minus 8b cube, again it's a cancelled. Overall output is 0. So we can say we just proved this one is a 0 by taking x is equal to a is equal to 2b. Now second part we are just solving now we are solving basically second part of the question. In the second part we have to calculate, find in terms of b the remainder when f of a is divided by a plus b. रिमाइंडर थ्योरम ने यही बताया था कि अगर आपने डायरेक्टली रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो आप वो गिवन फैक्टर या सॉरी गिवन वैल्यू जो है वो टू द पॉलिनोमियल पुट कर दें. तो यहाँ पर जो फैक्टर है, सॉरी जो एलिमेंट है वो क्या है, a is equal to minus b. So when you put a is equals to minus b to the given polynomial, it would be basically r. So minus b जब पुट करेंगे इसमें तो अगेन ये इक्वल हो जाएगा minus b cube minus b of minus b whole square minus 4b square into minus b plus 4b cube. So by simple calculation this will be minus b cube
अगेन दिस इज अ बी स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाता है, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव बी क्यूब माइनस माइनस प्लस 4b square, sorry 4b cube and plus 4b cube. So now again if you see all the terms are basically in terms of b cube. So can I say this minus b cube, this minus cube is minus 2b cube, and this 4b cube plus 4b cube is 8b cube. 8b cube plus and minus 2b cube will be equal to basically 6b cube. So this is the basically answer in terms of b of the second part of the question. I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी. फर्दर अगर कोई मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जरूर इसका फीडबैक दे दीजिएगा. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे. जैसा कि अभी इसी वीडियो के पहले पार्ट में सर अमानुल्लाह साहब ने आप लोगों को क्वेश्चन 14 करवाया था, तो अब हम क्वेश्चन 15 करेंगे और उम्मीद है इसमें आप कुछ और मज़ीद चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे. क्वेश्चन 15 आप लोगों के सामने, मैं एक बार रीड करता हूँ आप लोगों के लिए. गिवन दैट 2x स्क्वायर प्लस 3px माइनस 2q एंड x स्क्वायर प्लस q हैव अ कॉमन फैक्टर x माइनस a, where p, q and a are non-zero constant, show that 9p square plus 16q is equal to 0. अच्छा, अब इसको समझते हैं पहले, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. तो अब देखें, आप लोगों को दो पॉलिनोमियल्स गिवन है. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपके पास 2 है, और दूसरी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है. इनमें खास बात है, इनका फैक्टर कॉमन है. तो ये जो कॉमन फैक्टर है ये आप डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे. एक खास इंफॉर्मेशन है, P, Q एंड A आर नॉन जीरो कांस्टेंट. ये ऐसे कांस्टेंट हैं जिनको आप जीरो नहीं ले सकते. तो इन्हीं की बेसिस पर यू नीड टू शो दैट दिस रिलेशन व्हिच इज 9p स्क्वायर प्लस 16q इज इक्वल टू 0. ओके गाइस, हम मूव करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ. आपको जो दो पॉलिनोमियल्स दिए गए, आप इन्हें असाइन कर दें f of x और g of x. आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं. नॉर्मली पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए हम f of x लेते हैं, g of x लेते हैं, h of x लेते हैं, इवन p of x और q of x. इस तरह से भी इट्स अप टू यू, आप सिंबलाइज जरूर कर दें ताकि आसानी हो रही है हमें कम्युनिकेशन में. लेट f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3px माइनस 2q. गिवन पॉलिनोमियल पहला है. सेकंड पॉलिनोमियल व्हिच इज g of x, x स्क्वायर प्लस q. जो हमारी पहली इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि x माइनस ए इन दोनों का कॉमन फैक्टर है. जब ये हमें गिवन है तो इसका ये मतलब हुआ f ऑफ ए ये भी 0 के इक्वल होगा एंड g ऑफ ए ये भी 0 का इक्वल. अब इससे हमें क्या फायदा मिलेगा कि हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी जिनसे हम अपने उस रिलेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, और जो हमें लिमिटेशंस दी गई हैं कि a, p, q आर नॉन जीरो कांस्टेंट, हमें उसका ध्यान रखना है. सो यू विल हैव फर्स्ट इक्वेशन 2a स्क्वायर प्लस 3ap माइनस 2q इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन विच इज a स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 0. ओके, फिर बच्चा हम लोग ये करेंगे कि अब जो है हम इक्वेशन 2 से काम करते हैं क्योंकि वैल्यू निकाल रहे हैं. थोड़ा सा सोचें, आपको ना एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें ए नजर ना आए. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ए को एलिमिनेट करना है. तो वी नीड सम ट्रिक, सम स्ट्रेटजी, so that in final relationship we obtain only relationship in terms of p and q. तो अभी हम ये करने लगे हैं कि आप इक्वेशन 2 से q की वैल्यू फाइन लेकर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. फ्रॉम 2 we have q is equal to minus a square, then equation 1 will become 2a square plus 3ap minus 2 multiplied by the value of q which is minus a square
एंड इज इक्वल टू 0। अब आप ये करें कि इसमें से कोशिश करें, थोड़ा सोचें कंडीशंस का इस्तेमाल करके कि हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें ए की वैल्यू। तो अगर आप सिंप्लीफाई करें 2a स्क्वायर, the third term will become further 2a square. After adding, this will become 4a square plus 3ap is equal to 0। आप देख सकते हैं ये कॉमन आ रहा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये दो फैक्टर में आ जाएगी। ए आप कॉमन ले लें, 4a plus 3p is equal to 0। हमें दिया गया था कि हमारा a नॉन जीरो है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो पहला फैक्टर आप ए देख रहे हैं, इस पहले फैक्टर को आप जीरो के बराबर नहीं ले सकते। गिवन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आपके पास एम्प्लॉयज करता है 4a plus 3p is equal to 0। तो जैसा कि आपने देखा ये नॉन जीरो है, तो सेकंड फैक्टर 4a plus 3p आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहां से आप a की वैल्यू 4a plus 3p is equal to 0. From this, you will get the value of a, which is minus 3p upon 4. Put this value of a in equation 2. अगर आप देखें हमें जो रिलेशन चाहिए, उस रिलेशन को लाने के लिए इक्वेशन 2 में हमें a की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो वो हम पुट कर देते हैं। ओके जी, लेट्स मूव और पुट द वैल्यू ऑफ a in equation 2. Since a square plus q is equal to 0, minus 3p upon 4 whole square plus q is equal to 0। और अब आप देख सकते हैं कि हम मजीद सिर्फ ये करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके अपने रिलेशन तक पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब हमें इसको जस्ट बेसिक जो हमारी अलजेब्रा या अरिथमेटिक है उसका इस्तेमाल करेंगे। 9p स्क्वायर upon 16 plus q is equal to 0। negative 3p plus the negative 3p upon 4 का स्क्वायर ये मिलेगा। by taking LCM on left hand side you will have 16 9p square plus q is equal to 0। this implies that you will get your relationship which is 9p square plus 16q is equal to 0। तो आप देख सकते हैं हमें इस रिलेशन को शो करने की जरूरत थी, तो ये वो रिलेशन है जो हमने शो कर दी है। तो ये था प्रॉब्लम 15। उम्मीद है इस प्रॉब्लम से आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी और हम बिल्कुल ओपन है कि आप हमें कोई भी अपना फीडबैक या चीज़ बताएं, ताकि आपको हम रिस्पांस वीडियो में उन चीज़ों को आप लोगों की क्यूरीज को एड्रेस कर सके। तो इस वीडियो में मैंने और अमान साहब ने कोशिश की फैक्टर थ्योरम्स की जो एक्सरसाइज है उनमें से उन दो प्रॉब्लम्स को लिया जिससे आप काफ़ी आइडियाज़ को सीख सकें। तो उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क है वो प्रैक्टिस के तौर पर है, वो ज़रूर कीजिएगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस टाइम पर आप अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो जो है आपको वो सॉल्विंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इससे रिलेटेड उस पर हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।